اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد عظمتوں، نعمتوں، سعادتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی ایک عظمت اور ایک بلندی یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کی خلق، آپ کی خو بڑی عظیم ہے۔ اخلاق کا مطلب انسان کے جمیع اخلاقیات، اس کے رویے، اس کا لہجہ، اس کے معاملات، یہ سارے اخلاقیات میں شامل ہیں۔ دیانتداری بھی اخلاقیات ہے، سچ بولنا بھی اخلاق ہے، کنجوسی اور بخیلی سے بچنا بھی اخلاق ہے۔ انسان تمام رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھی سوچ، اچھا لب و لہجہ، لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے لیے اس کی طبیعت کے اندر اچھے جذبات، یہ سارا اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے سرکار نے ایک بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ انسان بڑا پکا نمازی ہو، بڑا پکا حاجی ہو، اس کا سارا لباس مذہبی ہو، اس کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں بہت کامیاب دیندار آدمی ہوں، لیکن اس کا رویہ، اس کا لین دین کرنا، اس کا لوگوں سے معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے بیچ وقت گزارنا یہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی اس کی نمازوں پر، عبادتوں، ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر و فکر، یہ نیم شبی، یہ ریاض، تیری خودی کے اگر پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیزگاریاں، یہ اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، نماز بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور تیرے صدقات و خیرات کرنا تیری زبان کو میٹھا نہیں کر سکے، تیرے لہجے کو حسین نہیں کر سکے، تو تیری ساری یہ عبادتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہے اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائے۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے، جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، جو کہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سے غلط ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا، فرشتے معصوم ہیں، اور اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی ہے۔ میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو خیز و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں۔ ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو، چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ دو حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لعن طعن کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے۔ فرمایا نہ بھائی، وہ لعن طعن کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی۔ ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر، انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائے، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے۔ او سبیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا کھانا سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائیں، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی،
आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये अखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए, तो जुबान से लान तान न करना, ये तेरे नबी का तरीका है। हाँ, उस शख्स से बचना जो तेरी नमाजों को कज़ा करने का जरिया। ऐसे लोगों के बारे में तेरा रवैया सख्त होना चाहिए, जहां तेरी इबादत, तेरी अल्लाह की बंदगी दांव पे लगती तुझे नजर आए। खुदा रहा, दीन का मिजाज तो समझे, हम किस तरफ चले। पर फिर यहाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात भी अर्ज कर दूं, हुजूर राजी नहीं है उस बंदे से जो मिलाद की झंडियां लगाए और नमाज छोड़े, जो जलसा वक्त पे कराए, महफिल के लिए सुबह शाम बेक कर दे और नमाज के मामले में सुस्ती करे। ऐसे ही जानबूझकर अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उसका माना क्या है? आपके छुप जाने से और जरा किसी बरकत वाली चीज के पीछे छुपने से शरीयत का हुक्म बदल जाएगा, असल चीज तब्दील कर दी जाएगी। हकीकतें हकीकतें रहती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। शरीयत का हलाल हलाल रहेगा और हराम हराम रहेगा। थोड़ा सा अपनी जात के लिए माफी दे के तो देखे, गलती हो गई है बहू से। उसके अब्बा जी ने पंचायत में आके पगड़ी खोल के तेरे पैरों के सामने रख तो दी थी, उसके भाई ने हाथ भी बांधे थे कि आइंदा नहीं करेगी, चल कर दे माफ, कोई बात नहीं, कोई कुफ्र नहीं हो गया। हो गई है ना गलती तेरे मुलाजिम से, बेचारा गरीब है, वो कहीं और जाके इस उम्र में बुढ़ापे में कहां नौकरियां ढूंढता फिरे। हो गई है गलती, माफ कर दे, दरगुजर कर दे। चल तेरा पड़ोसी गरीब आदमी भूल गया था, थोड़ा सा कर दे दरगुजर। लेकिन हम उस मुआशरे, उस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर वक्त जज बने रहने का शौक है लोगों को, फैसले करना और मुतले को लेनान बन के करना, और बस जी बस मैंने कह दिया है, अब दोबारा से मैं किसी की बात नहीं सुनता। आप मुझसे नाराज ना हो जाए तो यहाँ तो मस्जिद की कमेटी का सदर किसी से कंट्रोल नहीं होता, सारा कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन हमारा मिजाज है, मां बदौलत ने जो कह दिया वो हो के रहेगा। पत्थर बरसाने वाले, तकलीफें देने वाले, अज़ियतें देने वाले बुजुर्ग के सामने गर्दनें झुकाए खड़े थे। बताओ भाई तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, फतेह मक्का के दिन ऐलान हो रहा है। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने मेरे महबूब के अजमतों वाले बाप का जिक्र छेड़ दिया। कहने लगे आप भी बड़े ही करीब हैं, और आपके वालिद अब्दुल्ला भी बड़े ही करीब बाप के बेटे हैं, वो बड़े करीब थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने ये कहा है तो जाओ, फिर तुम पर कोई बदला नहीं, तुम्हारे साथ वही सलूक करना है जो जनाब यूसुफ ने मिस्र आए हुए भाइयों के साथ किया। उन्होंने कुएं में फेंका था और जनाब यूसुफ ने सीने से लगा लिया था, लिहाजा तुम्हारे साथ वही कुछ करना है। वो लोग, हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया। मैं अगर एक जुमला कहूं तो शायद आपको अच्छा लगे और आप कहें कि ये जुमला कोई किसी अच्छे अदीब ने और किसी अच्छे दानिश्वर ने बड़ी अच्छाई से कहा है। हुजूर ने उन्हें माफ करके रिहा कर दिया, पर वो कयामत तक के लिए मेरे नबी की जुल्फ के कैदी बन गए। फरमाया जाओ ना जाओ, मैंने तुम्हें रिहा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिहाई दी और उन्होंने बुलंद आवाज से कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। वो सारे हुजूर की जुल्फ नाज़िनी के गुलाम हो गए। माफ करके किसी को गुलाम बनाया जा सकता, बदला लेकर गुलामियां नहीं होती, मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ाती। हमारी तो ये मिजाज है, एक तो माफ करें। दूसरी बात, हमारे जो मातहत लोग हैं ना, मातहत, उनके बारे में अपना रवैया, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं ना, या मालिक ने उन्हें विनोदा दे दिया है, या उनके पास को 10, 20, 50, 200 लोग काम करते हैं, तो थोड़ा सा सोचें किसी वक्त बैठ के कि मैं आज एक फैक्ट्री का ऑनर बनकर और एक इदारे का सरबराह बन के बैठा हुआ हूँ, अगर कल मुझे वहां खड़े होने पड़ जाए जहां मजदूर खड़े हैं तो फिर मेरा हाल क्या? वो जो अपने मातहत के साथ हमारा रवैया ना, यानी हुक्म चलाने का एक मिजाज है। तो मैं एक दफा एक बड़ी महफिल नात में मेहमान खुसूसी बना लिया गया, तो मैं नीचे उतर रहा था, तो कुछ साहब थे उस महफिल में जो किसी खास नशिस्त पर वो भी बिठाए गए थे, और मेरे साथ वो बातें भी कर रहे थे। बातें क्या करनी होती है, बाजू का ज्यादा मसला तो तस्वीरों का होता है, तो भी चल रही थी और निजाम चल रहा था आगे आगे। तो मैं जब नीचे उतरा तो एक गरीब आदमी मेरे गले में फूलों का हार डाल के कहने लगा पीर साहब मैं भी सीधा मिलाऊं। तो उनसे सीधा जो मिला तो मेरे कान में कहने लगे वो तो आपके साथ कान में हंस हंस के बातें कर रहा था, मैं बड़ी बड़ी कराता हूँ सब मजदूरों का भी चाहिए, आज भी कीती जाते हो तो बहुत भी कीती जाते हो, खो के माल यतीमा का भेज मसीती जाते हो, ਤੁਸੀਂ ਠੱਕ ਦੀ ਲਾਗੇ ਸੀਨੇ ਨਹੀਂ ਅਟੋਟੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अजीब मिजाज है। नवाफिल कभी तरजीह उस तरह नहीं होनी चाहिए कि फर्ज पीछे रहना। बहरहाल जिसका जो हुक्म है वो बात वही आनी चाहिए। अपने मातहत के हक में एक शख्स ने हुजूर से पूछ लिया, एक साहब ने अर्ज कर ही दिया, उन्होंने बात ही कर दी। अर्ज की, ये सुनने अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, कहा या रसूलल्लाह मेरा मुलाजिम बड़ी गलतियां करता है, आखिर कितना को माफ कर दूं। कोई हद भी होती है, बड़ी गलतियां, बड़ी कोताहियां, बड़ी कमजोरियां, उसने गिन के माफ करने के लिए हुजूर कितनी कितनी बार माफ करूं। आखिर बाद लोग बात बातें झिलमिला के करते हैं ना, हुजूर आखिर कितना को माफ करूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोया फरमाया, अगर तूने गिन के पूछा है ना तो 40 तरह का एक दिन में 70 बार तो माफ किया कर। एक दिन में कितना माफ करना है, तजर्बा तो करेंगे क्या, हमने कभी 7 दफा भी माफ किया एक दिन में। हुजूर ने फरमाया 70 दफा माफ कर। और एक शख्स को तो नबी करीम ने इन लफ्जों से तंबीह फरमाई, फरमाया तेरे गुलाम पर जितना तुझे हक हासिल है ना तेरे इख्तियार में, तेरे रब से कई गुना बढ़ के तेरे ऊपर इख्तियार। या रसूलल्लाह इनका करे क्या? तो नबी पाक ने फरमाया अपने गुलामों को इस तरह रखना। ये जो बड़ी बात करते हैं ना इंसानी हुकूक की, वो मुलाजिम को सूट दे रहे कहे नवाइए, मैं कदी बारी पाया है नवाइए ले आजा, तो भैया आपको बगैर जो नहीं पहना था वो देना चाहिए था ना, मुलाजिम को नया खरीद के देते ना आप। यहाँ तो लोग ज़कात बांटते अपने मुलाजिमों पे, तो सियासी ज़कात बांटते। हाँ, उसको पैसे जो जो वक्त ब वक्त काम आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी करके वहां वहां बांटो, जब टाइम मिलेगा तो बुला लेंगे। खूब करे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, गोली अगर चेक कर दी है पर हो सकता है शिफा हो। हर दीनी काम में भी सियासत करते हो, जात के लिए इस्तेमाल करते हो। सुनो ये मेरे नबी पाक का इखलाक है। या रसूलल्लाह गुलामों से किस तरह गुजारा करे? फरमाया जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का इन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का इन्हें भी पहनाना, सियासता में मौजूद है। और फरमाया इनकी ताकत से बढ़कर कभी इन्हें काम ना बताना। मेरे महबूब के गुलामों ने तो इस तरह अमल किया कि हजरत अबू ज़र गिफारी जैसे सरदार अपने घर से निकले तो गुलाम साथ था। सामने से एक सरदार देख के हैरान हो गया, कहने लगा अबू ज़र ये कौन है? फरमाया मेरा गुलाम है। कहा दो गई यार, उसके कपड़े कीमती हैं और तुम्हारे कमजोर हैं, ये इनकलाब कैसे आया? तो जनाब अबू ज़र गिफारी फरमाने लगे ये मेरा इनकलाब नहीं, ये मोहम्मद अरबी का दिया हुआ इनकलाब है। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया। गालिबन एक गैर मुस्लिम के शेर है, कहता है ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। जब हजरत बिलाल को काबे की छत पर अजान पढ़ने की बारी आई तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि हुजूर काफिर पहले ही मर गए, तो हजरत बिलाल को काबे की छत पे देखेंगे तो और मर जाएंगे। तो या रसूलल्लाह रोज बिलाल नहीं पढ़नी है, अगर इजाजत हो तो कोई और को पढ़ ले। तो फरमाया ना भाई अजान तो बिलाल ही पढ़ेंगे और काबे की छत पे पढ़ेंगे, और हक इन्हीं का बनता है। कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुलामों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करने का जनाब हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि वो वक्त जिस वक्त में हुजूर का विसाल हुआ और वो मर्ज जिस मर्ज के साथ जाहिरन सरकार का विसाल ज़ाहिरी हुआ, फरमाती है उस वक्त भी मैंने हुजूर से जो आखिरी जुमले ज़ाहिरी तौर पर सुने तो यही थे कि नमाज का ख्याल रखना और गुलामों से अच्छा सलूक करना, अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना, सख्त लहजा, आमिराना मिजाज। मेरा एक जानने वाला शख्स है, उसके यहाँ से ना कोई 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं, कोई भरा है तो उसका बनाया हुआ तो 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं। तो एक दिन किसी तनख्वाह लेने वाले शख्स ने उससे आके कहा यार दादा तेरा है तो हम तेरी कदर भी करते हैं, तो दिल करता है तनख्वाह तुम दे। उस बदल रोना शुरू कर दिया, गरीब माँ का बेटा, किसान बाप का बेटा, किसी को तनख्वाह देते डर बना, तो अल्लाह ने ड्यूटी लगा, डर लगता है। अगरचे मेरे साइनों से जाती है, मेरी तिला से जाती है, पर मुझे डर आता है, मुझे खौफ आता है। मैं और किसी को तनख्वाह दूं, मैं और मैं ना ना ना, तो मुझे खौफ आता है। ये बाहर बाहर ही कोई और ही करे, मेरे वाला काम अपने अंदर एहसास पैदा करो यार। 4 लोग हमारे मातहत होते हैं, आप यकीन करें खून खुश किया होता है बाज लोगों ने अपने मुलाजिम। एक छोटी सी बात और अर्ज करूं, औरत बेचारी की अकल लाख किस्म थी, औरतों से अच्छा सुनो, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फिजा ना पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बर्दारी फरमाई है, हुजूर का सुलूक करीमाना रहा है।
महबूब की शफकत रही, सख्त तरीन लहजा और रौनक वाला मिजाज अपनी घरवाली के हक में, ये भी अंदाज नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। हुजूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए। दोस्तों के साथ खुश गपियां और देर देर तक खुशगवार मूड, और घर जाते ही लहजा तुर्श, और जनाब आप बाबा मैं थका हुआ आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बातें सुनने का। ये हुजूर का दिया हुआ इखलाक नहीं है, वो तो लिबास है मर्द औरत का और औरत मर्द का। एक तीसरी बात अपने जहन में और जरूर आज हमने बिठा के जानी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना मिजाज मुरब्बत वाला है, मदारात वाला। आज कुछ लोगों को शौक हो गया है, वो कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ जी, मैं बंदा जरा खरा हूँ जी, लिहाजा लोगों को पसंद नहीं। ये आपकी जाती की हुई तशरीह है। खरा बंदा लोगों को बड़ा पसंद होता है, आप खरे होंगे पर आपका रवैया खरे लोगों वाला। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ लिहाजा कड़वा हूँ। ओ भाई, कायनात में सबसे ज्यादा सच्चे मदीने वाले महबूब है, लेकिन हुजूर का लहजा तो शहर से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या बात हुई, ये आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। सच्चाई तो मीठी होती है, सच्चाई तो हसीन होती है। आपका अंदाज कड़वा कुसैला है। मैं जी सच बोल, आप असल में सच बोलते हैं दूसरों के बारे में, दो चार सच अपने बारे में भी बोले और बोलकर कहें कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, बोले सच। दूसरों की गलतियों का तो शक होता है ना, अपना तो बंदे को पक होता है ना, ये मेरे अंदर है। अपनी छुपाए फिरते हो, अपनियों पे पर्दे डाले हुए हो, अपने ऊपर मुलम्मर मेकअप किए हुए, दो चार सच अपने बारे में बोलो ना, पता चले। तुमने तो जब भी सच बोला दूसरे के बारे में बोला है। तो ये मुरव्वत मदारात नबी पाक के गुलामे बेदाम के सहाबा। हुजूर कभी किसी का नाम ले लेते तो वो समझते हैं कि हमारी तो मिराज हो गई है, और हुजूर किसी को नाम लेके भी डांट देते तो वो सादत समझते, कुर्बान होते। लेकिन ये मेरे नबी पाक की मुरव्वत का अंदाज है, ये हुजूर की मदारात। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो आपके ढीले ढाले होने से हालात खराब हुए। तो भाई क्या करें, लहजा मुरब्बत वाला, क्या करे अंदाज प्यार वाला, क्या करे, कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं, करते हैं, दिल करता है कई दफा चार सख्तियां मैंने भी करनी है, और वो क्या करें, किसी फकीर के यहाँ बैठने वाले हैं, उन्होंने अंदर से वो सारा अंदाज ही सारा निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी का नाम लेकर भी अगर कभी उसको समझा देते तो वो अपनी सादत समझता, लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर किसी की शिकायत आती थी ना, तो नबी पाक कभी भी उसका नाम लेकर बात नहीं करते थे, मजमूई बात कर देते। फरमाते लोगों को क्या हो गया, अब उन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया। वो मजमूई बात होती थी तो जिसकी होती थी वो खुद ब खुद समझ जाता। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया कमजोर ख्यालात वाले ना बन जाना, कहना कि लोग अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा, अगर लोग बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा। इस तरह का रवैया न करना, बल्कि आला इखलाक, आपकी तबीयत में मुरव्वत हो। एक सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने बड़ी अनोखी बात की, और ये जो बात उन्होंने की है ना, ये मेरा और आपका बहुत सारे लोगों का मसला है। इस तरह की बातें ढेर सारे लोग आके करते हैं। उन्हें आके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चचाजाद भाई हैं, मैं हमेशा उनके साथ उसने सलूक करता हूं, उन्होंने कभी भी मेरे साथ नहीं। मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने इनकार किया है, और उन्हें जब भी जरूरत पड़ी है मैं हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह, अब तो मैं इतना परेशान हुआ हूं कि मैंने कसम उठा लिया कि अब मैं भी उनके किसी काम नहीं आऊंगा, तय कर लिया। तो हुजूर हुक्म क्या है, मैं कसम उठा आया हूं कि बस खत्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कसम का कफारा दे ले और उनके साथ उसने सलूक ही कर। तू अपना रवैया उनके बारे में वो नहीं कर सकता जो उनका रवैया, तूने उसने सलूक के। और यार ये कोई कमाल है कि अच्छे के साथ अच्छा हूं और बुरे के साथ बुरा हूं। अच्छा एक और बात आज का नौजवान बड़ी कर, वो जी मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त ही गलत बात करनी होती है, गलत रवैया ही तो बर्दाश्त करना होता है, सही को तो बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ता। अगर आपसे गलत लहजे बर्दाश्त नहीं होते, बेमुरव्वत लोग बर्दाश्त नहीं होते, तो आपसे बर्दाश्त क्या होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने हम सबका इतना बड़ा मसला हल किया, या रसूल अल्लाह कसम उठा ली है अब मैं भी वही करूंगा जो वो करते हैं। तो हुजूर ने गोया सबक दिया, मेरे गुलामों की निशान नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, सुन भाई तू कसम का कफारा दे, लेकिन तूने उसने सलूक ही करना, तूने अपना रवैया उनके साथ कभी भी गलत नहीं करना, तूने अपना रवैया हमेशा उनके साथ। एक और बंदे ने आके अर्ज की थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रिश्तेदारों का सलूक मेरे साथ बड़ा जाहिलाना, मेरा रवैया उनके साथ अच्छा है। वैसे मैं और आप थोड़ा तजर्बा कर लें, वो सहाबी तो सच बोल रहे थे बिल्कुल। हमारे यहाँ ढेर सारे लोग इस मामले में सच्चे भी नहीं होते,
वो कह रहे होते हैं मैं रिश्तेदारों से बड़ा अच्छा हूं, पर ये तो दूसरे से पूछेगा तो पता चलेगा। ये तो सामने वाला अपना रवैया बताएगा तो फिर समझ आएगी, वरना तो पंचायत में हर बंदा यही कह रहा होता है कि सबसे ज्यादा नेक मैं ही हूं। आप जिसकी बात सुने वो फुल सच्चा होता है। ये तो दूसरा भी अपनी बोली बोलेगा तो फिर बात समझ में आएगी। लेकिन सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं नेकी करता हूं, वो जहालत करते, बदतमीजी करते, ज्यादती करते। या रसूल अल्लाह, मैं प्यार करता हूं, उनकी तरफ से हमेशा जफा होती है। तो ये मुरव्वत सिखाई है हुजूर के इखलाक ने। मेरे करीम बाबू फरमाने लगे, अगर वाकया ही ऐसा है जैसा तू कह रहा है कि वो ज्यादती करते हैं, तू नेकी करता है, तो करीम फरमाने लगे फिर तू उन्हें राख चटा रहा है। और हुजूर फरमाने लगे, जब तक तू ऐसा करता रहेगा रब तेरी मदद फरमाता रहेगा, अल्लाह तेरे लिए मददगार पैदा करेगा। अपनी मुरव्वत को कभी ना कुचले। सामने वाला करेगा रवैया जिस तरह का भी उसने करना है, जो भी उसकी तबीयत है वो करेगा। और करते रहते हैं लोग, लोगों की तबीयत होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमें अपने रवैयों को कभी भी कमजोर नहीं करना। किसी मकाम पर भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे छलके कि हमने मुरव्वत छोड़ दी। और चौथी और आखिरी बात, जिसके बाद हमने इख्तिताम की तरफ बढ़ना है, वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें एक बहुत बड़ा इखलाक ये सिखाया है कि नेकी हमेशा यकतरफा करनी। नेकियों को तिजारत नहीं बनाना, दूसरा भी करेगा तो फिर मैं भी करूंगा। ये हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि वो मेरी तरफ आया तो फिर बढ़ा के, तो फिर मैं भी उसकी तरफ तो फिर बढ़ा के जाऊं। नेकी हमेशा यकतरफा होती है, इसलिए कि अजर अल्लाह से लेना है, बंदों से नहीं लेना। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इखलाक ये है कि महबूब हमेशा यकतरफा खैर खाई करते हैं। कभी मुतालबा नहीं करते थे सामने वाले से कि वो भी खैर खाई ही करे। आप देखिए ताइफ वालों ने क्या किया, मक्के वालों ने क्या किया, दीगर बहुत सारे कबाइल थे, उनका रवैया हुजूर के बारे में क्या था। लेकिन नबी पाक का रवैया उनके बारे में ये था कि अगर मक्के में कहत पड़ गया तो हुजूर ने गल्ला भिजवाया। अगर वहां हालात खराब हुए तो नबी पाक ने उनके लिए दुआएं फरमाई कि या अल्लाह बराने रहमत फरमा। वो लोग बदर के अंदर तलवारें लेकर लड़ने के लिए आए, लेकिन हुजूर का आलम यह है कि महबूब फरमाते इनकी रस्सियां ढीली कर दो। अगरचे ये लड़ने आए थे और हमारे कैदी बने हैं, अगरचे इन लोगों ने बड़ा सताया था, पर हुजूर फरमाने लगे ये हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। नेकी यकतरफा होगी। आप ये इस चक्कर से, अगर तो इखलाक वाला बनना है तो फिर इस चक्कर से निकल आए कि मैं नेकी करूंगा और जवाब में दूसरा भी नेकी। सैकड़ों लोगों से अगर मैं ये दावा कर दूं तो शायद सच्चा होगा कि मैंने जिंदगी में हजारों लोगों से बैठकर गुफ्तगू की, लेकिन हमारा तरीका कार वो नहीं जो आला अखलाक नबी करीम ने हमें सिखाया। हम सिर्फ अपने दोस्तों की और अपने ग्रुप की तारीफ करने के हक परस्त नहीं रहे, हम गिरोह परस्त। हमें अपने ग्रुप, अपने गिरोह, अपने लोगों, अपने हल्का अहबाब मुझे कह लेने दो। वो सिर्फ एक ही आस्ताने के मुरीद अगर सारे हो जाए तो फिर ही वो ठीक हो सकते। अहले हक का, सही अकीदे का भी दूसरा बंदा हो तो ठीक नहीं होता। इस कदर ज्यादा छोटी और महदूद सोचे और बस एक मखसूस से दायरे में बंद होकर जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान, उम्मत का तसव्वुर कहां गया, उर्सी तो इलल खल्क की बात कहां गई। इस तरह के कच्चे और कमजोर नजरियात और इस तरह की पिलपिली बातें। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दफा कहा, ये भाई ने कहने लगे हम किसी और जगह भी जा सकते हैं। मैं क्या पुत्र हो, एक नहीं तू 100 जगह पे जा। खैर मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले वहां से ले लो। हाँ, एक बात जरूर है, उसको जरूर आप जहन के अंदर रखें कि किसी मुकाबले पे ना उतरे, किसी ऐसे चक्कर में ना पड़े। वो किसी बुजुर्ग ने किसी से कहा था पीर 2 भी हो सकते हैं, उसने कहा नहीं इस तरह कर, ये रवैया बना ले कि वालिद 1 होता है, चचा 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, चले इस तरह का मिजाज बना ले। लेकिन हमारी तबीयत और मिजाजों के अंदर जो घुटन आई है वो खौफनाक है। यक तरफा नेकी का मिजाज बनाए। तो एक तो आपकी खिदमत में आज ये बात अर्ज की है कि कोशिश करें दरगुजर और माफी का मिजाज पैदा हो, और दूसरा खास कर अपने मातहतों के बारे में अपना रवैया ठीक, और तीसरा थोड़ा मुरव्वत वाला मिजाज बनाए। हाँ, जो हक बात क्या नहीं हो जरूर कहे, लेकिन कुछ मुरव्वत हो। हर वक्त ही तल्ख रहना और बेबाक रहना और जो मुंह में आना कह देना। कातिल को कोई कत्ल के आदाब बताए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। और किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं और किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं। कोई तो मुरव्वत आपके मिजाज में हो, हर वक्त की तलखी, हर वक्त की नाराजगी, किसी के बारे में आपके यहाँ खैर के जज्बात नहीं, ये कभी ऐसा रवैया ना इख्तियार करें। और चौथी और आखिरी बात ये, नेकी को यकतरफा बनाए, नेकियों को तिजारत ना बनाए कि सामने वाला करेगा तो फिर मैं करूंगा। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए।